Welcome to an interview for The Wire. On Tuesday, March 2nd, a Dalit RTI activist, Amrabhai Borecha, was allegedly beaten to death by a group of upper caste Kshatriyas in the Sanodar village in the Bhavnagar district of Gujarat. Police officials have registered 2 FIRs, one against the 10 persons booked for murder and another against Sub-Inspector P.R. Solanki of the Goga police station. An Indian Express report suggests Borecha had earlier complained against the Kshatriyas at the Goga police station, but Sub-Inspector P.R. Solanki did not register an FIR. Now, 2 weeks later, on Friday, March 19th, independent MLA from Gujarat, Jignesh Mevani, was suspended from the State Assembly for a second time for indiscipline after he repeatedly raised the issue of the murder of Amrabhai Borecha. Joining me now is Mr. Jignesh Mevani. Let me start off by asking you this, Mr. Mevani. Amrabhai Borecha is killed in his village, where he tries to file a complaint against his assailants, but the police does not file the complaint. Do you think that this is an issue that tells us of a larger problem that exists within our society, of Dalit voices not being heard and Dalit voices being suppressed? Absolutely. First of all, we must understand we had Protection of Civil Rights Act, which is even today there in practice, which came into force in 1955-56 to deal with the untouchability related offenses. But when we as a society failed to deal with this monster of caste, when this realization came to us that we are not been able to put an end to caste violence and caste discrimination, and untouchability is still there. That is where after 3-4 decades in 1989, we came up with the Atrocities Act. And the main purpose of the Atrocities Act is not to register the complaint after the occurrence of the offense, but it is to prevent the atrocities from happening. Right. And that's why this prevention of atrocities on scheduled caste and scheduled tribe people. So even in this case, Amrabhai was attacked 13 times. Between 2009 to 2021, there have been 13 types of atrocities he has been subjected to. Right. माँ बहन की गाली देना, कास्टिस्ट रिमार्क्स करना, उनके घर के अंदर घुस जाना, इलीगल ट्रेसपासिंग, उनको सरकार के द्वारा आवंटित की गई जमीन के ऊपर गैरकानूनी कब्जा करना, Right. इन मामलों की पुलिस थाने में कंप्लेंट करने जाते हुए पिटाई करना, ऑफेंस दर्ज किया उसके लिए और एक बार मारना, ऑफेंस क्यों दर्ज किया ये कहकर कंप्लेंट विड्रॉ करवाने के लिए फिर हमला करना, गांव में दलितों का दूध दूसरे लोगों का दूध डेयरी में डेयरी के जो भी ट्रस्टी वगैरह वो भरने देंगे, दलित को नहीं भरने देंगे, ये मुद्दा उठाने के लिए मारना. सो Amrabhai Borecha for the past 11 years was subjected to all forms of atrocities. Right. Every time he was assaulted or casteist remarks were passed against him, it was failure of Atrocities Act. It Right. was failure on the part of the state of Gujarat. Right. They are not able to protect one citizen who is belonging to scheduled caste. What is worst is, एक बार हमला हुआ, 2 बार हमला हुआ, 3 बार हमला हुआ. एट्रोसिटीज के कानून में प्रोविजन है अक्यूज को कुछ इलाकों से तड़ीपार करने की. Right. तो जब कोई आदमी और उसके इर्द गिर्द की टोली एक से मतलब 12-13 बार हमले करती है, फिर भी उसके अंदर खौफ नहीं बैठा है. Right. हम किसी को डराना नहीं चाहते. The ones who belong to so-called upper caste, they are also our brothers and sisters. Right? I am a human being. मुझे किसी भी समुदाय के व्यक्ति के अंदर उसकी कास्ट और रिलीजन मुझे नहीं देखता, ये मेरा बीमारी नहीं है जी. वो सारे हमारे भाई हैं. लेकिन लगातार कोई एक व्यक्ति, लगातार कोई एक टोली, उसकी मंडली इतना एट्रोसिटीज कर रही है, तो पुलिस और प्रशासन उसके दिमाग में तो कुछ खौफ बैठाने चाहिए ना. कुछ तो उसको लगना चाहिए कि अब मैं यदि कुछ करूंगा तो मैं लंबे में अंदर जाऊंगा. टू पुट इट इन सिंपल टर्म्स, ये कभी नहीं होता. तो सवाल एक ऐसा क्यों नहीं होता? या तो आप इस प्रकार का खौफ उनके दिलों में बिठाओ, भाई गलत करोगे तो मर गए. अभी तो क्या हो रहा है, आपने ऑफेंस दर्ज किया, दूसरा ऑफेंस दर्ज किया, तीसरा ऑफेंस दर्ज किया, 2-3-4 दिन अंदर रहे और बेल मिल गया. एट्रोसिटीज के कानून में जो तड़ीपार करने की प्रोविजन है उसको इस्तेमाल किया जा सकता था, वो कभी नहीं किया.
न केवल उतना, ये 11 साल हो गए, 2-3 केस में तो सामने वाले लोग कन्विक्ट हो जाने चाहिए थे जी। राइट. वी हैव अ प्रोविजन ऑफ हैविंग स्पेशल कोर्ट्स, इट इज मैंडेटरी एज पर द एट्रोसिटीज एक्ट. गुजरात में क्या हो रहा है, सुबह 11 बजे डिवोर्स की मैटर फाइल होती है, मैं लॉयर भी हूं जी। तो उसके आई नो द सिचुएशन. शाम को 3 बजे चोरी का केस आएगा, फिर 5 बजे को एट्रोसिटी का केस आएगा. जी। कोर्ट्स विच आर मेंट एक्सक्लूसिवली टू डील विद द ऑफेंसेस रजिस्टर्ड अंडर द एट्रोसिटीज एक्ट, जी। ऐसी जो स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए वो है नहीं. 2, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि किसी के ऊपर हमला ना हो. जी। प्रिवेंटिव मेजर्स कभी लिए नहीं जाते. और जी। अमराबाई के केस में जब 14 बार अटैक हुआ तो पुलिस की मौजूदगी में अटैक हुआ, उनके घर के अंदर घुसकर खून कर दिया. और उनकी बेटी के साथ मेरा कल, मुझे जब असेंबली में सस्पेंड किया, कल आके उनकी बेटी से बात हो तो उनकी बेटी ये कह रही थी कि मेरी आंखों के सामने पुलिस सब इंस्पेक्टर उनको धमकी दे रहे थे कि तुमको जब मार डाले ना तब आना. जी. लेकिन यार मुझे मार डालेंगे, सचमुच मार डालेंगे, इतनी बार मुझे असोल्ट किया, इतना ऑफेंस में दर्ज किया, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग सीरियसली. वो सीरियसली लेने की बजाय अमरा भाई को लगातार ये कहते रहे कि सचमुच पिटाई हो ना तब आना. दिस वाज द एटीट्यूड. One thing that's interesting about this is, I mean, you're talking about how the law enforcement agencies are operating. Over the past few months, we have seen the arrest of Nodeep Kaur and Shiv Kumar, both Dalit labor rights activists who have said that they were beaten in custody. Do you think that there is an involvement of law enforcement agencies? Do you think that there is a systemic effort by law enforcement agencies at suppressing Dalit voices, at ignoring the Dalit voices when they are in threat? Indian state undoubtedly operates with caste class bias, right? We have all the organs of the state in India are under the so-called control of upper caste, upper class, tiny minority of upper caste, upper class. So they are the ones who are controlling all the land, wealth, resources, right, political power. तो ये तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन संविधान के लागू होने की इतने दशकों के बाद भी ये जो कुछ लोगों की हेगेमनी जो इंटेक्ट रही है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले छुआछूत भारत में थी, आज भी जिंदा है. तब भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, कास्ट वायलेंस होता था. लेकिन अभी आरएसएस और बीजेपी और एबीवीपी की कैडर में एक ऐसा मैसेज गया है, एक ऐसा मतलब कि इट इज लाइक कन्वेड विदाउट कन्वेइंग, कि हम कुछ भी कर ले दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ, right, हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है. right. उसके चलते उनको चर्बी चढ़ी है, और उसी का नतीजा है जो रोहित वेमुला के साथ हुआ वो हुआ. Why Rohit got so much suffocated and frustrated? It is because of this Manuvadi mindset. Why what happened? Why Pune flogging incident happened? ये गौरक्षकों को तरह हिम्मत कहां से मिला? क्यों दिल्ली में रविदास का टेंपल टूटा? क्यों भीमा कोरेगांव में पार्टिसिपेट करने वाले आंबेडकराइट्स इंक्लूडिंग आनंद तिलतुमड़े को नक्सलाइट बोल के जेलों में डाल दी? राइट. क्यों इतना मॉब लिंचिंग भारत में हो रहा है? क्यों यूपी के अंदर इतने एट्रोसिटीज और एनकाउंटर्स हो रहे हैं? क्यों प्रशांत कनौजिया को जेल में डाला गया? क्यों नवदीप कौर के साथ ये हुआ? तो ये जो ब्राह्मणिकल मनुवादी माइंडसेट से ऑपरेट करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स है, सीधी भाषा में कहूं उनको और भी चर्बी चढ़ी है पिछले 5-6 सालों के दौरान. It's interesting. You're saying that post 2014 there has been a legitimization of these violent actions because the state in itself empowers this. Yeah, they feel confident. They think that they can get away with doing anything with minorities and Dalits. They are supremely confident now. And so when you raise this issue in the state assembly, and you've been suspended because of it twice already, so how do you view that? How do you view the state assembly suspending you over this? And why is it particularly every time you raise Boricha's killing? What was the thing that I was raising in the assembly of Gujarat? My question was simple. The ones who killed Amra Boricha, they are arrested. Right. That's fine. But one more offense is registered against the police sub-inspector who was not receiving Amrabai Boricha's written complaints. Right. He was absolutely indifferent and careless. So he is also primarily responsible for his murder. And therefore, there is a section under Atrocity Act, wide Section 4, which is for willfully neglecting the duty.
Under that, an offense is registered against this police sub inspector on 3rd of March. It has been 17-18 days. एक पीएसआई की गिरफ्तारी नहीं हो रही, मतलब कि कल को कोई आईएएस ऑफिसर या आईपीएस अफसर किसी दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तब तो कोई चांस ही नहीं कि आप उसकी गिरफ्तारी करो। पूरी इस व्यवस्था की डिजाइन में एक पीएसआई बहुत नेग्लिजिबल चीज होता है, नोबडी, यदि उसका भी गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। और 3 बार मैं असेंबली में बोला उसके ऊपर, एक सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट के ऊपर जब डिबेट चल रही तब मैंने बोला कि दलित मोहल्ले में हमको बिजली के खंभे और पेवर ब्लॉक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मामला सोशल जस्टिस का है जी। बाय वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग द वेलफेयर स्कीम्स और पुटिंग इन सम सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वी कैन पुट एन एंड टू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी और मैनुअल स्कैवेंजिंग। सोशल जस्टिस इज समथिंग एल्स, राइट? सो इस पीएसआई की गिरफ्तारी करो, तब हम मानेंगे कि यू आर कमिटेड टू द दलित कोज। दे रिमेन साइलेंट। फिर दूसरे दिन जब होम डिपार्टमेंट का बजट था, जब गुजरात के होम मिनिस्टर खड़े हुए, देन इट वाज नॉट माय टर्न, बट देन आई कुडंट वेट फॉर माय टर्न, राइट? फिर मैंने उनको डिस्टर्ब किया, मैंने उनको बकायदा रोका और कहा कि बाकी की सारी बातें अभी रुक जाइए, पहले मुझे ये बताइए कि आपका इस पीएसआई के साथ क्या सेटिंग है, कौन सा गणित काम करता है, क्यों बचाना चाहते हैं, क्या इक्वेशन आपको इसके साथ, आपका कोई संबंध है, गुजरात की भाजपा सरकार का है, ऊपर से किसी की सूचना आई है, विजय रूपाणी साहब का कोई कनेक्शन है, हफ्ता देते हैं, क्या करते हैं आपको? व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग सच अ स्मॉल फिश? राइट, बट दूसरी बार ये सवाल कल उठाया तो फिर फाइनली मुझे सस्पेंड किया। The state assembly says they are suspending. I deserve to be suspended, but I was very much right in raising the question. Yeah, the state assembly says that they are suspending you because you say these statements without taking permission from the speaker. How do you respond to that? Yeah, but prior to that, during the debate of the Social Justice Welfare Department, it was fair on my part to raise the question. It was it was required. Right. It was very much required. Right. People were waiting me to raise the question. I raised the question. Right. But they didn't answer. They didn't answer. Right. खामोश बैठे रहे. So I can't remain silent. In your statement after your suspension, you asked who is the Vijay Rupani government defending, as you mentioned right now as well. Your placard addressed to the Home Minister read, "What relation do you have with the accused PSI in the Goga Dalit murder case that he is not being arrested? Do you suspect an involvement of the state in the protection of this PSI? And how far do you think is this involvement?" Sorry? Do you suspect that there is an involvement of the state in the protection of this police sub-inspector? And how far do you think is this involvement? There may not be some direct connection. Involvement is of this sort that there is when Dalits and minorities are attacked and when the police officers are involved, they always get away. Always get away. So state always protect them, right? In fact, it's very interesting and I would love to share it with you. In Armugam survey versus state of Tamil Nadu, apex court has held that if a scheduled caste, scheduled tribe person files a complaint of atrocity, not before the police, but before the executive magistrate, subdivisional magistrate, and district magistrate. And if these people, these revenue officers, executive magistrate, subdivisional magistrate, and district magistrate don't take cognizance, and if they do not apprehend the accused immediately, then along with criminally charging the actual culprits, actual accused, these officers should be departmentally charge sheeted with immediate effect. Right. I am the DM. So first, you have committed an offense on some scheduled caste person. तो आपकी तो गिरफ्तारी यदि तुरंत मैं नहीं करवाता हूं, तो आपकी गिरफ्तारी हो तब हो, पहले मुझे डिपार्टमेंटली चार्जशीट कर देना है फॉर बीइंग इनडिफरेंट। इस केस में 18वां दिन आज हो गया है। तो क्या कर रहे कंसर्न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, क्या कर रहे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, क्या कर रहे डीएम साहब, क्या कर रहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्या कर रहे गुजरात के होम सेक्रेटरी, गुजरात की डीजी, गुजरात के एडिशनल डीजी एससी एसटी सेल, गुजरात के होम मिनिस्टर, गुजरात के सीएम? एब्सोल्यूट साइलेंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा दूसरे मामलों में भी होता है, ठीक है? उसको आप 2 फोरम पे उठा सकते हो। एक तो 3 जगह पे आप उठा, एक तो सड़क पे आप उठाओगे प्लेकार्ड लेकर, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ,
दूसरा आप असेंबली में बोलोगे। तीसरा, सीएम की अध्यक्षता में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सीएम ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट every year 2 meetings take place for the overall supervision and monitoring of the atrocities act. पिछले 20 साल में हर साल में 2 के हिसाब से 40 ऐसे मीटिंग होने चाहिए थे। राइट 5 या 6 मीटिंग ही हुए हैं। क्या होता है इस मीटिंग में कि ये सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कोप्स, एसपीज, दिस दैट, ये एट्रोसिटीज में उनका जो रूल है उसका पालन करते हैं कि नहीं, उसके सुपरविजन और मॉनिटरिंग के लिए सीएम साहब खुद बैठते हैं। वो खुद ही मीटिंग कंडक्ट करने को तैयार नहीं है तो एसपी को डांट कहां लगाएंगे? व्हाट इज वर्स्ट इज, राइट, I being the member of legislative assembly from the scheduled caste constituency, from a reserved constituency, I am the member in that committee, right, and the entire nation know that my fight is against the exclusion. right. Last year when this meeting took place, रूपानी साहब ने उस मीटिंग में से मुझे ही एक्सक्लूड कर दिया, the one who is fighting against exclusion. The reason being? They couldn't give any explanation. तो मुझे ये मीटिंग होने वाली उसकी 2 दिन पहले पता चल गया, तो मैंने उनको पत्र लिखा कि मुझे पता चला है कि मीटिंग आप करने वाले हो, सालों के बाद करने वाले हो, धन्यवाद, मुझे इनवाइट नहीं किया है, आई एम द मेंबर, फिर भी मुझे इनवाइट नहीं किया है, कोई बात नहीं, मुझे 3 घंटा पहले भी कोई कॉल कर देगा ना, मैं कहीं पर भी मैं पहुंच जाऊंगा। right. और मैंने मजाक में किसी को बोल दिया, किसी पत्रकार साथी को, कि मैं तो भाई मीटिंग में घुसूंगा, ऐसा कैसे मुझे एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आईबी से इनपुट जनरेट हुआ, मुझे ऑफिशियली मीटिंग में बुलाने के बजाय विधानसभा के सारे गेट के ऊपर 50-50 पुलिस वाले खड़े कर दिए टू एंश्योर दैट आई डोंट एंटर द मीटिंग। वेलकम टू वाइब्रेंट गुजरात। You see, I mean, when we talk about this, it's an extremely hostile environment, even for those who have found their ways to state assemblies. So my last question to you has to be about this. What's the way forward for Dalit activists? Yeah, see, इसमें ऐसा एक ये चीज है कि पिछले साल मैं गुजरात के अमरेली, राजकोट, भावनगर और जूनागढ़, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में घुमा, एक संगठन निर्माण की प्रक्रिया के लिए, कुछ दलित कम्युनिटीज के साथियों के साथ डायलॉग के लिए। वहां ऑडिटोरियम में कुछ मीटिंग्स हुए, कुछ मीटिंग खाट पे हुए, गांव में, मोहल्लों में, कुछ 1-2 800,000 लोगों की पब्लिक मीटिंग्स भी हुई। टोटल मैंने 4-5 हजार लोगों को एड्रेस किया। Right. उन सारे 4-5 हजार लोगों के साथ जो डायलॉग हुआ मेरा पिछले साल 4 जिलों में गुजरात में, उनमें से एक एक्टिविस्ट और 2 लॉयर, तीनों को छोड़ के प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इज एन एक्ट टू फाइट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये किसी को पता नहीं था। यही हालत पूरे भारत के अंदर है। Right. तो कहीं ना कहीं छुआछूत के खिलाफ हमारा कोई मोर्चा ही नहीं है। आप देखिए, लिबरल प्रोग्रेसिव खेमा भी भारत का कहीं पर अनटचेबिलिटी के खिलाफ कोई मुहिम छोड़े हुए नहीं है। Right. ना ही दलित बहुजन आम्बेडकर ग्रुप भी इनके खिलाफ कुछ ज्यादा लड़ रहे हैं, ना ही समाज में, मतलब एक तरीके से अनटचेबिलिटी को हमने स्वीकार कर लिया है। Right. पहला हम ये करें कि जितना हम सहारनपुर में घर जले या भीमा कोरेगांव की मूवमेंट हो या ऊना की घटना हो, तब हम जितना चार्ज होकर सड़क पर उतरते हैं, Right. एट्रोसिटीज के वक्त ज्ञापन देने के लिए जितना धसते हैं, एक एट्रोसिटीज और दूसरी एट्रोसिटीज की घटनाओं के बीच में थोड़ा सोचकर ये अनटचेबिलिटी को कैसे खत्म करें और उसके खिलाफ लगातार कैंपेन कैसे हो। Right. इसमें नॉन दलित कम्युनिटीज के लोगों के साथ प्यार से डायलॉग भी हो सकता है। Right. कौन सी सदी में जीतो यार, खोल दो कुआं यार, क्या क्या पागलपन है यार। मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा डायलॉग करने से कभी कोई रिजल्ट नहीं आ सकता, आ भी सकता है, एक वो प्रयास हो। उसके साथ साथ अथॉरिटीज के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जाए कि क्यों वो मंदिर में प्रवेश नहीं है, क्यों वो कुआं खुला नहीं है, क्यों लंबी मूंछ रखने पर पिटाई हो रही है, टेक कॉग्निजेंस, तो उनको थोड़ा दौड़ाया जाए। थर्ड, उनके डायलॉग और हमारे डायलॉग के बावजूद भी यदि वो मानने को तैयार नहीं, तो फिर अनटचेबिलिटी रिलेटेड ऑफेंसेस उनके खिलाफ दर्ज हो। फिर सारे, मतलब गुजरात का एग्जांपल लेता हूं, गुजरात में 150-200 नगर पालिका है, 1.5-2 लाख सफाई कर्मी हो गए। Right. कोई एक 14 अप्रैल के दिन
मैं उस 14 अप्रैल के दिन का इंतजार में हूं जब सारे लोग एक 24 घंटे के लिए झाड़ू रख दे, तब पता चलेगा लोगों को। हजारों एकड़ जमीन का आवंटन लैंडलेस लोगों को हो सकता है। देयर इज अ प्रोविजन इन द रेवेन्यू लॉ, राइट, ऑल द गवर्नमेंट वेस्टलैंड कैन बी अलॉटेड टू लैंडलेस दलित्स, ट्राइबल्स एंड ओबीसीज। ये डिमांड ही ज्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं, बट डिमांड नए सिरे से खड़े हो, राइट। और दलित मूवमेंट भी ये रियलाइज करे कि अल्टीमेटली दलित मूवमेंट हैज टू बी द मूवमेंट फॉर एनाइलेशन ऑफ कास्ट, नॉट जस्ट फॉर asserting कास्ट आइडेंटिटी ऑल द टाइम, राइट। ऑफ कोर्स ये प्राइमरीली नॉन दलित्स को करना है, राइट, लेकिन दलित्स को भी करना है। और दलित विद इन दलित जो सबकास्टिज्म है, राइट, बुनकर है, कोई महार है, कोई मातंग है, कोई मादिगा है, कोई माला है, वाल्मीकि है, उनके बीच में भी कुछ इंटर सबकास्ट मैरिजेस हो, राइट। और हर संभव तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। मैं दुख के साथ शेयर करता हूं कि गुजरात की असेंबली के बाकी के विधायक जिस जज्बे और स्पिरिट के साथ में एचएम को, होम मिनिस्टर को सवाल पूछ रहा था कि वो उस पीएसआई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, दूसरे 2-5 भी विधायक खड़े होते ना जी जी, तो सांप उनको भी थोड़ा सूंघा हुआ है, वो भी खामोश है। तो कास्ट, various dimensions, and we need to attack on each and every dimension of caste. Caste is an obnoxious, pathetic, filthy thing, a thing which we need to throw into the dustbin of history and realize as a nation, as a society, as a mankind, कि हम कब सुधरेंगे भाई। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.